জবে মেলে জনে জনে মেলে ভোটে ভোট করে ওঠে এক গণতন্ত্রের সিস্টেম, গণতন্ত্রের সিস্টেম। মতদাতা যুক্ত হলেই হয় এমন নতুন এক কানেকশন, নতুন এক কানেকশন। मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। যখন লোকের সঙ্গে লোক যুক্ত হয়, ভোট থেকে ভোট তৈরি হয়, তখন লোকতন্ত্রের সিস্টেম। কি ব্যাপার, আজ তুমি এই অনুষ্ঠানের গান গুনগুন করছো? দারুণ ব্যাপার তো। নমস্কার ভারত, আজ এই অনুষ্ঠানের জয়ন্তী না, 52তম এপিসোডের অনবরত যাত্রা, এক এক পদক্ষেপ। সারা দেশের 23 ধরনের ভাষাতে মতদাতা জংশনের এই পথ চলা 1 বছর পূর্ণ হলো। আরে হ্যাঁ, যেন মনে হচ্ছে এ যেন কালকেরই ঘটনা। হ্যাঁ, আর এই পুরো যাত্রা পথে শ্রোতাদের সম্পূর্ণ ভালোবাসা এবং সহযোগিতা পেয়েছি আমরা। যারা আমাদের শুনেছেন, আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ, আর অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাই যারা আমাদের টিমকে উৎসাহ দিয়ে গেছেন। আর আমাদের টিমের প্রত্যেক সদস্যরাই তাদের স্নেহ পেয়েছেন। আরে ভাই, মন্ডলীর ব্যাপারে কিছু কথা হচ্ছে মনে হচ্ছে, আমাদেরকেও সঙ্গে নাও। আসুন কাকা, আপনাকে এবং কল্পনাকে স্বাগত জানাই এই জংশনের সর্বশেষ বৈঠকে। স্বাগত তো বুঝলাম, কিন্তু সর্বশেষ বৈঠক এই কথাটাতে মর্মাহত হলাম। কিন্তু চলুন, বিদায়ও তো জীবনেরই একটা অঙ্গ। হ্যাঁ, তবে সময় নষ্ট না করে এবার কাজের কথায় আসা যাক। কাকাবাবু, আগের এপিসোডে আমরা আমাদের শ্রোতাদের ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন কমিশনার শ্রী অনুপ চন্দ্র পাণ্ডে এবং শ্রী অরুণ গোয়েল মহাশয়ের থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানিয়েছিলাম। সেই জন্য আমাদের শ্রোতারা আমাদের ধন্যবাদ বার্তাও পাঠিয়েছে, আর তারা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন যে এই জংশনে মাননীয় মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রী রাজীব কুমার মহাশয়ের বার্তাও যেন শোনানো হয়। আর এই নিবেদন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রী রাজীব কুমার মহাশয় সানন্দে গ্রহণ করেছেন। আরে বাহ, এ তো দেখছি খুব ভালো খবর। এই সর্বশেষ পর্বে আমরা শ্রোতাদের শোনাতে চলেছি মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রী রাজীব কুমার মহাশয়ের কথা। বাহ, তবে তাড়াতাড়ি শোনাও না। কিন্তু তার আগে একটা সঙ্গীত বিরতি। हर वोट से चमकेगा जन जन का सपना, मतदान बदल सकता है समझो जीवन अपना। जब हो सवाल सरकार में हिस्सेदारी का, तब जिम्मेदारी से मिलजुल कर बेहतर करना। हम गौरवशाली लोकतंत्र के बने सिपाही, अब वोट से अपनी राह बनाते ভারতী, आगे बढ़ना। চলো অনুষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক। আর এখন সময় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমার মহাশয়ের কথা শোনার। নির্বাচন কমিশন 1950 সালে স্থাপিত হওয়ার পর থেকে এখনো পর্যন্ত নির্বিঘ্নে এবং পারদর্শিতার সঙ্গে নিজের দায়িত্ব পালন করে চলেছে। আসুন শুনে নেওয়া যাক কি বলছেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমার মহাশয়। सर्वप्रथम मतदाता जंक्शन के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा आप जानते हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे पुराना भी लोकतंत्र है। इसको हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। वर्तमान में हमारे देश में 95 करोड़ के आसपास मतदाता हैं। 18 से 19 की जो एज ग्रुप है, उसमें हमारे यंग मतदाता 1.85 करोड़ हैं। और अगर देखें 80 से ऊपर जो ओल्ड मतदाता हैं, वो भी करीब करीब 1.85 करोड़ के आसपास हैं। अगर 100 से ऊपर के मतदाता देखें तो वो भी 2 लाख से अधिक है। उसमें हमारे पास ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं करीब 50,000, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी भी हैं करीब 81 लाख। पार्लियामेंट्री इलेक्शन जब होता है एक साथ, तो उसमें हम 12 लाख से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाते हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा मतदान कर्मी हमारे साथ इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो बहुत ही जटिल व्यवस्था है, और हमारे जो मतदान कर्मचारी हैं वो बहुत बड़े धन्यवाद के भी पात्र हैं कि आपके पास पहुंचते हैं, और वोटर्स भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि वो अपना वोट देने आते हैं। पिछले पार्लियामेंट्री चुनाव में 67% से ऊपर वोटिंग हुई, और उसमें भी खुशी की बात है कि महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक थी। तो बहुत बड़ा एक लोकतंत्र का त्योहार है, 7 दशकों से ऊपर का त्योहार है। इसमें आप सबकी भागीदारी होती है, एक उत्सव का माहौल होता है। समाज में सब लोगों को एक दूसरे से इश्यूज पे डिस्कशन करने का मौका देता है, और फिर वोट करने का मौका देता है। ভৌগোলিক বিভিন্নতার কারণে নির্বাচন কমিশনের প্রতিকূলতার বিষয়ে শ্রী রাজীব কুমার মহাশয় আর কি বলছেন, আসুন শুনে নেওয়া যাক। हमारा देश भौगोलिक रूप से विविधता से भरा हुआ है। अगर आप उत्तर में जाएं तो बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, दक्षिण में जाएं तो 7,000 किलोमीटर से ऊपर की कोस्टल लाइन है, पश्चिम में जाएं तो डेजर्ट्स हैं, तो पूर्व में जाएं तो पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा रेन होने वाली जगह है।
तो इतनी विविधता भरे देश में हमारे जो कर्मी चुनाव कराते हैं उनको हमें साधुवाद देना चाहिए, धन्यवाद भी मैं करता हूं उनको। उसको उत्सव बनाते हैं। कहीं कहीं सबसे ऊंचे बूथ भी दुनिया का हमारे पास है जो हिमाचल में है, तो वहाँ भी वोट लेने जाते हैं। और समुद्र के अंदर ऐसे टापू हैं जहाँ भी एक वोटर है उसको भी वोट लेने जाते हैं। कहीं बोलिए तो सिर पे उठा के भी मशीन्स को लेके जाते हैं, नदी से भी लेके जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी है जहाँ जा नहीं पाते हैं, हमें हेलीकॉप्टर से भेजना पड़ता है। तो कोई भी व्यक्ति छूटे ना लोकतंत्र में वोट देने से। एवरी वोट काउंट्स, और प्रत्येक वोट हम चाहे कुछ करना पड़े हम उसको लेके आए, ऐसी हम व्यवस्था करते हैं। तो अगर ऐसी व्यवस्था करते हैं तो उसमें ये उम्मीद भी करते हैं कि जिसका अधिकार है और जिसका कर्तव्य है वो वोट डालने आए। चुनाव आयोग ने एक टैगलाइन भी बनाई है कि मतदान जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर देंगे हम। आई वोट फॉर श्योर, नथिंग लाइक वोटिंग। বেশ কিছু প্রশ্ন মনে আসছে, সেই সব প্রশ্ন যা সারা বছর শ্রোতারা আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে থাকেন। এগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ভারতী। তো কি বললেন শ্রী রাজীব কুমার জি? নিজেই শুনে নিন কাকা। एक इंद्रधनुषीय रूप है हमारे मतदान सूची का, जिसमें यंग भी हैं, महिलाएं भी हैं, ओल्ड एज भी हैं, ट्रांसजेंडर पर्सन्स भी हैं, हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी लोग भी हैं, 80 से ऊपर भी हैं। हमने सबको शामिल किया हुआ है। जैसे आप जानते हैं अभी हमारा इलेक्टरल रोल्स का रिवीजन हर साल होता है, तो इस साल भी होने वाला है। तो जिसका नाम छुटा है वो अभी भी अपना नाम डलवा सकता है। आपको लगता है कि किसी का नाम गलत जुड़ा हुआ है तो उसको कटवा भी सकते हैं। तो आप पूछेंगे उसके लिए कमीशन क्या करता है। तो हम 17 अक्टूबर को एक ड्राफ्ट जो हमारा रोल है उसका पब्लिकेशन करेंगे, और ये सभी कॉपी सभी राजनीतिक दलों को भी दे देंगे, अपनी वेबसाइट पे भी डाल देंगे, सीओ साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब लोग। और फिर आपके पास रहेगा 26 दिसंबर तक का समय। तो वो सबकी चेंजेस जिसमें हो सकते हैं उसके फॉर्म्स हैं, फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 आप भरिए, और उसको नेट से भी भर सकते हैं डायरेक्ट, जहाँ जहाँ नेट की सुविधा है। और फाइनल हम उसको पब्लिश कर देंगे 5 जनवरी को। हमारे 10 लाख से ऊपर BLOs भी हैं, हर बूथ के लिए एक। उनको कहा गया है कि आप घर से घर जाके सर्वे करें। युवा शक्ति जो है वही राष्ट्र शक्ति है, उसी पे भविष्य टिका है। अब हम 4 बार साल में जो क्वालिफाइंग डेट है उसको मानते हैं। पहले 1 जनवरी को मानते थे, तो यानी 41,000 बच्चे जो यंग वोटर्स हमारे बड़े, वो ऐसे थे कर्नाटका में जो वोट डाल पाए हमारे इस अमेंडमेंट की वजह से। इसी तरह हिमाचल में 43,000 लोग जो उसी साल में 18 साल के हुए थे, अगर अमेंडमेंट ना आया होता लॉ में तो उन्हें 1 साल वेट करना पड़ता 1 जनवरी का, वो सब वोट डाल पाए। आपको किस तरीके की समस्याएं हैं, लोकल मुद्दों के बारे में आप क्या सोचते हैं, देश के मुद्दों के बारे में आप क्या सोचते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं, उससे एक अपना मत, अपना विचार कायम करें, और विचार कायम करके आप अपना मत दें। आपका मत आपकी पसंद की सरकार लाएगा और आपकी विचारधारा को आगे बढ़ाएगा। ভারতীয় লোকতন্ত্রের যাত্রা ব্যালট বক্সেস থেকে শুরু করে ইভিএম, ভিভিপ্যাট পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আর এখন তো পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনের প্রক্রিয়াতেও পরিবর্তন এসেছে। অ্যাপ্লিকেশনের বিষয় হোক, ইভিএম, ভিভিপ্যাট এর বিষয় হোক, ইলেকশন কমিশন সব সমস্যার জন্যই তৈরি। একদমই তাই। ভোটপত্রের এই ডিজিটাল অবতারের বিষয়ে আসুন শুনে নি কি বলছেন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রী রাজীব কুমার। ईवीएम की जो शुरुआत हुई 40 साल हो गए इस बात को। हमने अभी एक बुकलेट भी निकाली है, 40 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ ईवीएम्स। तो ये एक मार्वल है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का। एक तो जब आप वोट डालते हैं तो आवाज़ आती है, आप देख सकते हैं आपने किसको वोट डाला। उससे भी बड़े और प्रमाण हैं। हर बूथ पर कौन सी मशीन जाएगी ये किसी को पता नहीं होता, रेंडमाइज होता है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स हर प्रक्रिया के समय उसमें सामने में शामिल रहते हैं। उसको आप गोडाउन से बाहर नहीं निकाल सकते, पार्टीज होनी चाहिए। उसको गोडाउन में रख नहीं सकते, पार्टीज होनी चाहिए। उसमें ट्रेनिंग के दौरान नहीं ले जा सकते, पार्टीज होनी चाहिए। उसमें मॉक पोल हो जाता है, आप डाल के देखिए, जितनी बार डाल के देखना है। जब बूथ पे पहुंच जाती हैं तो फिर से आप सुबह में पहले 50 वोट डालिए, भाई सही जगह वोट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, सबके सामने डालिए। उसके बाद जब काउंटिंग होगी फिर सामने में बैठे रहिए। वोटिंग खत्म होगी, आपको हिसाब मिल जाएगा कि कितने वोट पड़े बूथ पर। जब काउंटिंग शुरू होगी, बटन दबेगा तो उतने ही बूथ उसमें निकलेंगे, और उसका परिणाम ही प्रमाण है। বাহ, মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক কত সহজেই সমস্ত বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিলেন আমাদের। কাকা, একটা বিষয় আমরা মাঝে মাঝেই শুনে থাকি, এথিক্যাল ভোটিং। আসুন জেনে নি কি বলছেন শ্রী রাজীব কুমার মহাশয়। अगर अब आप देखें तो चुनाव
निष्पक्ष होने में और एथिकल होने में, दोनों में कुछ वोटर्स की जिम्मेदारी है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है, और क्या क्या चीजें पॉलिटिकल पार्टीज को बतानी चाहिए, कैंडिडेट को बतानी चाहिए, और वो कैसे सुविधाजनक तरीके से वोटर को जानने की माध्यम हम बनाएं, उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक ऐप है जिसका नाम है नो योर कैंडिडेट। तो जैसे अभी कुछ कुछ जगह में कैंडिडेट्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, उनकी कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि होती है, तो उन्हें हमने निर्देशित किया है, कोर्ट का भी ऑर्डर था कि वो 3 बार न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे कि उनके विरुद्ध में किस धारा में किस वजह से केस चल रहा है, और यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी बताएगी कि उन्हें क्रिमिनल कैंडिडेट क्यों चुनना पड़ा। तो इसका ऐप भी बनाया हमने, KYC नो योर कैंडिडेट। तो आप डाउनलोड करें उस ऐप को और अपने मोबाइल पे आपके पूरे कैंडिडेट का खाका, उनके क्या असेट्स हैं, उन्होंने क्या एफिडेविट फाइल किया, उनकी क्या लायबिलिटीज हैं, उनका क्या आपराधिक बैकग्राउंड तो नहीं है, ये सब पता लगेगा। तो मूल धारणा क्या है कि जागरूक वोटर भी हो और जानकार वोटर भी हो, और साथ ही साथ एथिकल में अगर आपको लगता है कहीं कोई गलती हो रही है तो एक एप्लीकेशन और बनाई है हमने, उसका नाम है सी विजिल। सी माने सिटीजन, विजिल माने होशियार। जो भी आपको दिख रहा है उसका फोटो खींच लीजिए या उसके बारे में 2-4 लाइन हमें लिख दीजिए और इस ऐप में पोस्ट कर दीजिए। आपको अता पता नहीं लिखना है अपना, आप जहां भी होंगे उसका एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ढूंढ के कैरियर के थ्रू हमें पता लग जाएगा कि आपने किस जगह से वो शिकायत की है, और जो भी हमारी बगल की टीम होगी, क्विक रिस्पॉन्स टीम होगी, QRT जिसको हम बोलते हैं, वो 100 मिनट के अंदर अंदर उस जगह पे पहुंच जाएगी। কাকাবাবু, আপনি শুনলেন তো, যখন আলোচনা আকর্ষণীয় হয় তখন সময়ের খেয়ালই থাকে না। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রী রাজীব কুমার মহাশয় সব শেষে এই আবেদনের মধ্য দিয়ে কি বললেন সেটা আমাদের সকলের মন দিয়ে শোনা উচিত। यही कहना चाहता हूं कि पिछले जनरल चुनाव में पार्लियामेंट के 67% वोटिंग हुई थी, महिलाओं की वोटिंग अधिक थी, लेकिन इस बार हमने ठाना है कि हमें इससे ऊपर जाना है। तो हमने ऐसे बूथ और ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी छांटी है कंट्री में, हर स्टेट में, जिनमें उस स्टेट के एवरेज प्रतिशत से कम की वोटिंग हुई थी। यानी किसी स्टेट में अगर 60% वोटिंग थी तो हमने ऐसे बूथ छांटे हैं जहां 60 से भी कम थी। तो 2 टारगेट दिए उनको, पूरी स्टेट को हम मान के चल रहे हैं मेहनत की भाई आप तो 60 से 67 पर आओ, और जो 60 से भी नीचे थे वो कम से कम 60 पर आओ। ये होगा तो तभी जब हमारे सुनने वाले सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और हमारे युवा साथी ये ठानेंगे कि भाई इस बार तो हमें वोट देना ही देना है। हम तो प्रयास करते रहेंगे, और इस पर मुझे 2 लाइनें याद आती हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम चुनाव आयोग की तरफ से बिल्कुल दृढ़ संकल्प है कि हम इसको करेंगे। और फिर से 2 लाइनों के साथ अपनी बात को अंत करता हूँ। खोजेंगे अगर तभी तो रास्ते मिलेंगे, प्रयास करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, मंजिलों की तो फितरत है वो खुद चलकर सामने नहीं आती। বাহ, মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রী রাজীব কুমার মহাশয়ের থেকে আমরা কত বিষয়ে জানতে পারলাম, তাই না? একদমই তাই ভারতী। আর তাই আমাদের শ্রোতা এবং মতদাতা জংশন টিমের পক্ষ থেকে আমরা ধন্যবাদ জানাই ভারতের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রী রাজীব কুমারজিকে। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে ভারতীয় লোকতন্ত্রের সারথি হয়ে ভারতের নির্বাচন কমিশন আগামী দিনেও নিজের দায়িত্ব এভাবেই পালন করবে। हर वोट की शक्ति से अपनी पहचान बना ले, बदलेगी हाँ बदलेगी अब जीवन की धारा, सरकार हमारी चुनाव मतदान। এবার সময় হয়েছে প্রশ্ন উত্তর পর্বের, যার জন্য সকলেই অধীর আগ্রহে বসে থাকেন। ভারতী, এবার তো শুধু উত্তরই হবে, প্রশ্ন নয়, কারণ এটা হলো অনুষ্ঠানের সর্বশেষ এপিসোড। কাকাবাবু বলে দিন, আগের এপিসোডে কি প্রশ্ন করেছিলাম আমরা? প্রশ্ন ছিল ভোটদানের দিন ভোটারদের জন্য মতদান কেন্দ্রে হেল্প ডেস্কের ব্যবস্থা কে করে থাকে? আর এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হল BLO, মানে বুথ লেভেল অফিসার। এখন সময় বিজয়ীর নাম ঘোষণা করার। আর গত পর্বের সঠিক উত্তর দিয়ে যিনি ভাগ্যবান বিজয়ী হয়েছেন, देवराज मरिहल, प्रजत्ने रसली ठाकराई, तहसील बसंतगढ़, जिला उधमपुर, पोस्ट ऑफिस मजौरी, पिन 182128, जम्मू कश्मीर। আপনাকে অনেক অনেক অভিনন্দন। ভারতের নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আপনার পুরস্কার আপনার উল্লেখ করা ঠিকানায় খুব শীঘ্রই পৌঁছে যাবে।
তবে ভারত, কাকাবাবু এবং কল্পনা, এখন সময় হয়ে গেছে আমাদের জংশনের সকল শ্রোতাদের থেকে শেষ বিদায় নেওয়ার। আর মন থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানানোর এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার, কারণ শ্রোতা বন্ধুদের ছাড়া আমাদের যাত্রা কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারত না। কি কাকাবাবু? একদমই তাই ভারত। সারা দেশের থেকে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে আসা বার্তা এটাই প্রমাণ করে। আরও একবার অভিনন্দন জানাই সব বিজয়ীদের, যারা আমাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে পুরস্কার জিতেছেন। আর সেই সঙ্গে আমাদের এই অনুষ্ঠানে নিজেদের রচনার মাধ্যমে অংশ নেওয়া সকল শ্রোতা, যাদের জন্য অনুষ্ঠানের শোভা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। একদম ঠিক। নির্বাচন কমিশনের সকল আধিকারিক যারা এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে শ্রোতাদের বার্তা দিয়েছেন, তাদেরকেও ধন্যবাদ। আর সেই সঙ্গে সকল সেলিব্রিটি আইকনস যারা নিজেদের মতামত সকলকে জানিয়েছেন, তাদের সকলকে আমাদের ধন্যবাদ। এবার সময় হয়ে গেছে আপনাদের সবাইকে বিদায় জানানোর। কি কল্পনা? হ্যাঁ, একদম। একটু অপেক্ষা করো। বিদায় নেওয়ার আগে শ্রোতা বন্ধুদেরকে কিছু অনুরোধ করতে চাই। সেটা কি কাকাবাবু? এটাই যে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনারা যা কিছু জানলেন, শিখলেন, তা শুধু নিজের মধ্যেই সীমিত রাখবেন না। কারণ আমাদের অনুষ্ঠানের পরিচয় সঙ্গীতই বলে, ভোটদাতারা যুক্ত হলে তৈরি হয় নতুন কানেকশন, মানে একজনের থেকে আরেকজন যেন যুক্ত হতে থাকে। কি দারুণ কথা বললেন কাকা আপনি। তবে শেষবারের মতো আমাদের পুরো টিমের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই নমস্কার। জনে মেলে জনে জনে মেলে ভোটে ভোট করে ওঠে এক গণতন্ত্রের সিস্টেম, গণতন্ত্রের সিস্টেম। মতদাতা যুক্ত হলেই হয় এমন নতুন এক কানেকশন, নতুন এক কানেকশন। मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन।